Hello everyone, welcome to EduTap. So guys, after the examination of RBI Grade B over, one common fear that the NABARD aspirant has is that the RBI Grade B examination is out of the box. It was one of the most difficult examination with respect to general awareness that we have seen in the past 5 years. Can we expect the same thing in the NABARD grade examination? Point number one is that. Second is what should be my level of preparation? Because I am daily getting calls from student कि सर बहुत डर लग रहा है, क्या करें क्या ना करें. So guys, do not be in panic mode. We will be discussing in today's video all about the thing that what should be the level of preparation for the NABARD grade examination. कौन से sources follow करना, कितने months तक follow करने हैं. All these things we'll be discussing in today's video. Before I start this video, guys, I just wanted to give you a brief introduction about this comprehensive guidebook that we have prepared for you. This guidebook can be your guide with respect to the syllabus that is required to be prepared. What are the sources from which you can cover this syllabus, and the most important thing, guys, the previous year question papers. So you will be getting everything here to kickstart your preparation. And the most important thing is these guidebooks are absolutely free, guys. Okay, so you just have to click on the link that is given in the description below and you can download this guidebook with you. Now let me first start with the importance of current affairs for this examination. RBI के लिए different होता है, NABARD के लिए completely different होता है. क्यों? देखिए, if you look at the marking scheme of NABARD, just see the thing here. They have set the preliminary examination structure for the NABARD grade examination, where they have given these different sessions, and the most important thing is there no timing. It's a composite timing that is there. तो sectional timing वाला पंगा नहीं है जो RBI में होता है. तो ये फियर कम हो जाएगा क्योंकि अगर पेपर डिफिकल्ट भी हुआ देन ऑल्सो यू हैव अ टाइम टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस. दैट्स पॉइंट नंबर 1 टू बी नोटेड हियर. तो यहां पे थोड़ा सा ये एक एडवांटेज मिल जाता है. दूसरा, देख एट द पॉइंट हियर, दे हैव सेड देयर आर सम क्वालिफाइंग सेक्शन एंड देयर आर द मेरिट सेक्शंस. नाउ क्वालिफाइंग सेक्शंस लाइक रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर नॉलेज, quants and decision making, ye are your qualifying section where merit will not be decided because they have clearly defined. Then we have a merit section of general awareness, economic and social issues, and agriculture and rural development. Based on these merit sections your selection will be done, which means if you guys are doing the basics also in qualifying sections और आपको एफर्ट ही सारा जीए पे लगाना है तो यू स्टिल हैव अ टाइम. आपको बाकी चीजों पे तो एफर्ट कम लगाना है ना, मिनिमलिस्टिक लगाना है. ठीक है, तो ये एक आपको चीज यहां पे एडवांटेज मिला, विच मींस करंट अफेयर्स और व्हाट दिस प्रोमिनेंट सेक्शंस विल रियली बी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन. नाउ लेट्स सी वन थिंग मोर हियर. वन थिंग मोर हियर इज दैट इज हाउ यू शुड डू द थिंग हियर. ओके, फेज 2 में क्या है? फेज 2 में लिखा है आपका ईएसआई और एआरडी का पेपर होगा. 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव, 50 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव. ठीक है, वेयर 30 क्वेश्चन ऑफ ऑब्जेक्टिव विल बी देयर एंड 6 क्वेश्चन ऑफ डिस्क्रिप्टिव विल बी गिवन हियर. तो यहां पे कॉमनैलिटी देखिए आपने, अगर मैं इन दोनों स्लाइड्स को मैच करता हूं, कॉमनैलिटी क्या है? दीज आर द टू थिंग्स, ईएसआई एंड एआरटी. आरबीआई में ये चीज नहीं होती, नाबार्ड में प्रोमिनेंटली गिवन है. तो मतलब अगर जो आपको फियर था आपके माइंड में कि यार क्या होगा, यहां पे क्लियर कर दिया है. आपको ईएसआई फेज 1 के लिए भी पढ़ना है, फेज 2 के लिए भी पढ़ना है. एआरटी फेज 1 में भी 40 मार्क्स का आता है, फेज 2 में भी आएगा, ऑब्जेक्टिव में भी आएगा, डिस्क्रिप्टिव में भी आएगा. व्हिच कंक्लूड्स माय फर्स्ट पॉइंट हियर फॉर योर प्रिपरेशन इज दैट योर इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन इज मस्ट फॉर ईएसआई एंड एआरटी. दिस इज द सेम थिंग वी हैव सीन द रीसेंट एग्जामिनेशन. तो आपको इंटीग्रेटेडली करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने हैं. बट नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, सर इफ वी हैव टू प्रिपेयर इट इंटीग्रेटेडली, ठीक है जी, व्हाट्स द प्रोमिनेंट थिंग हियर? इंटीग्रेटेड तो मैंने आपको बता दिया, आपको इंटीग्रेटेडली पढ़ना है, सिलेबस भी बता दिया, सब कुछ बता दिया. तो अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि इसमें भी क्या करना है सर इंटीग्रेशन में. देखो, इसमें सबसे पहले लुक एट द थिंग at the number of questions that has been asked. If I talk about the prominence of ESI section of 40 marks, it's heavily dominated by current affairs. From the past two examination, 21 में भी current affair dominated था, 22 में भी current affair dominated है, and we can expect the same in the 2023 examination also. Because previous 2 years में हमें पता है current affairs dominated है. कैसे था? Maximum questions were from government schemes. Then there were 12 questions from reports and 5 questions were from current affairs. So in totality there were 33 questions that was from the current affairs part, which means the ESI current affairs, if you have gone through the syllabus, गाइडबुक मैंने आपको बता दी, आपने ESI का सिलेबस डाउनलोड किया, तो जो करंट अफेयर्स और सिलेबस से रिलेट करते हैं आप वो पढ़ रहे हो, तो आपके यहाँ पे 33 marks. It's not just they are helping in phase 1, they will be helping in phase 2 also.
ठीक है जी. Then if I talk about the phase 2 objective paper, when I talk about here guys, there are 8 questions on government schemes. There were 2 questions on reports. So total out of 30 you again got 10 questions, which means almost 1/3 of your paper you have covered from the preparation of your ESI part. तो preparation जो पहला पॉइंट है कि इंटीग्रेटेडली पढ़ना है, that's being proved here. तो ESI के इंटीग्रेटेडली पढ़ना है क्योंकि करंट अफेयर डोमिनेटेड आता है. ठीक है. देन इफ आई टॉक अबाउट द अदर प्रोमिनेंट थिंग गाइस, द डिस्क्रिप्टिव हैव आल्सो बीन आस्क्ड फ्रॉम ESI करंट अफेयर्स. इफ आई टॉक अबाउट द गवर्नमेंट स्कीम्स, तो यहां पे नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के ऊपर आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ चुका है. ठीक है जी. दिस टेल्स अस वन थिंग गाइस, द गवर्नमेंट स्कीम्स व्हिच आर बीइंग डिफाइंड इन द सिलेबस और द टॉपिक्स दैट आर डिफाइंड इन द सिलेबस, यू मस्ट बी थॉर अबाउट दैट थिंग. तो आपको उसको ऑब्जेक्टिव के साथ साथ डिस्क्रिप्टिव के लिए भी प्रिपेयर करना है. दैट इज हाउ यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर करंट अफेयर्स. दैट्स पॉइंट नंबर 1 टू बी नोटेड, दैट व्हेनेवर यू आर प्रिपेयरिंग द करंट अफेयर्स with respect to the things that are defined, ठीक है जी, so prepare it from the perspective of objective as well as descriptive, because the same fodder material that you are reading is a fodder for your descriptive part, so that you can use there. तो एक चीज क्या हो रहा है, एक तलवार से काफी चीजें, एक चीज से काफी चीजें सॉल्व हो रही हैं. ठीक है जी. चलिए, लेट्स टॉक अबाउट द ERD नाउ हियर. नाउ ERD ऑन द अदर हैंड इज अ स्टैटिक डोमिनेटेड पार्ट. ठीक है. तो मिक्सचर एंड अवार्ड में ESI करंट, ARD स्टैटिक डोमिनेटेड होता है. बट if you look at the questions here, so there were 7 questions in the phase 1 examination and there were 7 questions in the phase 2 examination. Okay, so when I talk about the government schemes part that was asked in ARD current affairs, so there were 2 questions in phase 1, 2 from reports and 3 were from basic ARD current affairs. Okay, then is the thing with respect to phase 2, तो यहां पे भी देखो स्कीम्स हैं. इन टोटलिटी अब कितने हो गए क्वेश्चंस? ठीक है जी. 8 वहां पे, 6 यहां पे, तो 14 क्वेश्चंस हो गए. ठीक है जी. और फिर करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है. तो ARD स्टैटिक आपको पढ़ना है, बट ARD में करंट अफेयर्स मिनिमलिस्टिक है, बट दैट कैन आल्सो हेल्प यू इन स्कोरिंग गुड मार्क्स. एफर्ट कम है और हेल्प जहां पे कर जाएगा. तो दिस इज द फर्स्ट थिंग, दैट इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन इज मस्ट with respect to the ESI and ARD part for your examination. Then when I talk about current affair is the key pillar in phase 2 examination, how can I say that thing? ठीक है जी. Let me see the questions here. देखो, you have total 30 questions and then you have 6 questions from government schemes, 8 in this total 14 questions from government schemes, 2 questions from reports and 1 question was from ARD current affairs. So which means out of 30 questions you have 6 at 14 to 16, 17 questions that are from directly from current affairs. ठीक है जी. और फिर अगर आप इंटीग्रेटेडली प्रिपेयर कर रहे हो तो आपने ESI स्टैटिक पढ़ा है, ARD स्टैटिक पढ़ा है, तो वहां पे क्योंकि 2 पैराग्राफ्स तो ARD स्टैटिक के आ ही रहे हैं पिछले 2 साल से, तो विच मींस अराउंड एंड अराउंड योर 8 क्वेश्चंस विल बेसिकली बी फ्रॉम द ARD स्टैटिक पार्ट. 8 to 9 क्वेश्चंस ARD स्टैटिक पार्ट से आएंगे. ठीक है ना. और वो पहले भी आते थे. तो वहां पे भी क्या हो रहा है कि आपका जो इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन ही है वही अल्टीमेटली आपको यहाँ पे भी रिजल्ट आउट कर रहा है. एंड आई विल से गाइस, यू डू नॉट रिलाई ऑन दिस थिंग. सिर्फ 17 क्वेश्चन है तो बाकी नहीं आएंगे. The questions level can enhance also because we have seen that currently they are mixing the things. ठीक है. तो कहीं ना कहीं ARD करंट और स्टैटिक को मिक्स कर रहे हैं. तो जो चीज आप करंट में पढ़ रहे हो उसी के रिगार्डिंग यू हैव टू रीड द स्टैटिक पार्ट ऑल्सो फॉर द एग्जामिनेशन. सो दैट्स माई एडवाइस टू यू दैट ये देखो करंट मैंने बता दिया डोमिनेटेड करंट कर रहा है, बट स्टैटिक छोड़ना मत, उसको रिलेट करना फॉर द एग्जामिनेशन. ओके. देन नेक्स्ट इज द थिंग पॉइंट हियर. अब जब मैंने बोला करंट अफेयर्स फेज 2 में बता दिया कितना इंपॉर्टेंट है, बट फेज 1 के लिए तो करंट अफेयर ही मस्ट है, जो पहला मेरिट सेक्शन निकालना है. क्यों जी? लेट्स लुक एट द थिंग हियर. सो इफ यू लुक एट द 3 मेरिट सेक्शंस, दैट इज GA, ESI, ARD. Now look at the questions here. There were 20 questions on GA, 17 questions were from current affairs. Previous year, 33 questions were from ESI current affairs. 7 questions were from current affairs in ARD. If I talk about these 2 prominent sections, जब आपको मेरिट सेक्शन में मार्क्स स्कोर करना और करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, तो देखो 17 plus 33, 50, and if I talk about here, 57 marks of paper out of 100 is current affair dominated and I have included 33 marks तो सिर्फ एक सेक्शन की हैं. तो अगर ARD स्टैटिक आप अच्छी तरह पढ़ रहे हो और बाकी का आपको बेसिक भी पता है ESI का, तो then also guys you can score good marks in the paper 1 also in the merit section. Okay, so this should be the thing here, that the current affair is playing very prominent role here.
तो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स जनरली नाबार्ड में जो कैसा आ रहा है पिछले 2 साल से, तो कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स थोड़ा सा एनहांस हुआ है। तो करंट अफेयर डोमिनेटेड पेपर है फेज 1। फेज 2 इज अ मिक्सचर है, बट स्टिल you have thoroughly prepared, integratedly you have prepared the examination, you can score good there. Now is the next part here, ठीक है जी, from where shall I start preparing the questions? Because this year तो एग्जाम आया सर हिल गया, पर देखो दोनों एग्जाम्स की नेचर डिफरेंस है। तो based on the past 2 to 3 examinations, I can say that still for NABARD there are these 2 prominent sources, PIB or the Hindu is the kingmaker here. So these are the 2 sources which are kingmaker here. How? Let's look at the questions here. ठीक है जी, जीए सेक्शन में 65% क्वेश्चन जो थे वो पीआईबी से आए थे, 23% वर फ्रॉम हिंदू, विच मींस 88% of these things can be covered only from the 2 sources, that is PIB and Hindu. And mind my word guys, if you are reading PIB, Hindu will also be complementing PIB also. ठीक है, सो कहीं ना कहीं जो चीज आप यहां पे पढ़ रहे हो वो यहां पे भी आपने पढ़ी होगी, तो दे आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर. On ESI perspective, if I talk about here guys, previous year 70% questions is from PIB, then 3%, which means here the weightage is 73% with respect to those 2 things here in ESI current affairs. ठीक है, अब यहां पे ये नहीं कि यहां पे बाकी चीजें पढ़नी है, बट अगर आप कंपाइलेशंस पढ़ रहे हो तो आपका ये वाला पर्सपेक्टिव भी कवर हो जाएगा. ठीक है, एआरडी में बात करो तो एआरडी में तो सीधा फंडा था, 7 क्वेश्चन थे, 50% था, 50% is from other sources, 50 was from PIB, because the Hindu, if I talk about guys, it's not a prominent newspaper from the perspective of the agriculture current affairs point of view, but फिर भी वहां पे जो prominent news होती है देखते हैं तो PIB can be a source here. So which means these 2 sources if you follow, they will give you a maximum return of output here, not 100%, I'm saying maximum. तो मैक्सिमम आपको यहां से you can see, you can gather here from this sections. Let's look at the questions that were asked from this thing. If I talk about the question from general awareness perspective, तो क्या था, what is the name of third India Bangladesh passenger train, ठीक है, जो कि लॉन्च हुई है. तो यहां पे पीआईबी में से क्वेश्चन आया था 1 जून को. ठीक है जी. देन which of the following is India's first elevated urban expressway, क्वेश्चन आया है आपका 11 जुलाई को. सो विच ऑलवेज से कि यार आपका पेपर जो है, टिकट वाज इन द मंथ ऑफ सितंबर के राउंड आपका पेपर था. ठीक है जी. सो दैट्स अ थिंग टू बी रिमेंबर्ड. ठीक है ना, तो जैसे सितंबर अक्टूबर के राउंड आपका पेपर होगा तो आपको रिसेंट मंथ्स के जो पीआईबी करंट अफेयर्स है वो आपको पढ़ना है. तो पीआईबी आपको थॉरोली पढ़ना है. इफ आई आस्क यू अबाउट हिंदू आल्सो, देन आल्सो यू कैन से 29th of April, United Nations General Assembly has elected which of the following countries to replace the UNHRC. So that's a question that has been asked here. फिर पूछा गया which of the following nation has recently in August launched the mission named Danuri. That's again being covered from the Hindu. Because this kind of news guys, when specifically if I talk about कि आपको कौन सी न्यूज पीआईबी से पढ़नी चाहिए, कौन सी हिंदू से. जब आपको जनरल गवर्नमेंट न्यूज, ESI स्कीम्स और I can say reports which are related to government of India, that can be easily tackled from PIB. तो जो गवर्नमेंट वाला फंड है वो PIB से पढ़ लो. उसके अलावा जो बाकी न्यूज हैं जैसे साइंस एंड टेक हो गया, डिफेंस हो गया, या फिर अदर इंटरनेशनल इवेंट्स, दैट कुड बी टैकल्ड फ्रॉम हिंदू. सो दैट्स हाउ वी से कि 2 सोर्सेज इंपॉर्टेंट, क्योंकि सिर्फ PIB भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स कवर कर देगा, but other initiatives, because this kind of news of Danuri mission will not be in PIB. So complementation of 2 sources is important here. ठीक है जी. अब आते हैं फेज 2 के ऊपर. फेज 2 में तो सिंपल फंडा है यार. देखो टोटल 17 क्वेश्चन दियो. ठीक है जी, ऑफ द करंट अफेयर्स, एंड इट्स बीइंग कंप्लीटली वन थिंग आई कैन से कि यहां पे डोमिनेंसी फेज 2 में किसकी आती है, पीआईबी में. तो इस साल भी, पिछले 2 साल से अगर आप देख रहे हो, पीआईबी इज डोमिनेटिंग द फेज 2 ऑफ द एग्जामिनेशन, बिकॉज वहां पे जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं, मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आर इन दैट सेंस जहां पे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स को डिस्कस किया जाता है. सो इट इज बीइंग डोमिनेटेड बाय पीआईबी है. सो दैट्स अ सोर्स व्हिच आई से यू मस्ट फॉलो के पीआईबी. कैसे, लेट्स सी द क्वेश्चन हियर. तो आपको ई नाम पे पैराग्राफ आया था. फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्च ईयर, पोर्टल कौन से स्टेट्स में एप्लीकेबल है, 2000 ई नाम ने इंटीग्रेट किया फ्रॉम टुडे विद विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव. ठीक है जी. अब 22 मार्च को इंप्रूवमेंट ऑफ ई नाम पे क्वेश्चन आया था. ठीक है जी. लेट मी लुक एट द लिंक हियर विद यू. ठीक है, चलिए अब देखो यहां पे ई नाम के बारे में सब कुछ दिया हुआ है. ठीक है जी. ई नाम कब बना था, ई नाम के कौन सी कैटेगरीज के अंदर आता है, एवरी इंफॉर्मेशन अबाउट ई नाम इज गिवन
here that has been asked in the examination, so which tells us that if you are going through the articles of PIB thoroughly, only one thing I will say here is, guys, whatever you are reading for the examination, read it thoroughly. ठीक है, मैं आपको सोर्सेज बता दूंगा, मंथ्स बता दूंगा, और फिर पेपर में आप बोलो सर पेपर डिफिकल्ट हो गया, पेपर लेवल हो सकता है हायर होगा पिछले साल से, वी कैन एक्सपेक्ट दैट थिंग, बट द अल्टीमेट थिंग इज विच एवर थिंग यू आर रीडिंग, इधर यू आर रीडिंग कंपाइलेशंस, इधर यू आर रीडिंग दी PIB और हिंदू ऑन योर सेल्फ, यू हैव टू रीड देम thoroughly. यही गुणबान है जी आपका मेन सोर्स ऑफ प्रिपरेशन के लिए फॉर द NABARD एग्जामिनेशन. ओके, सो नाउ इफ आई मूव फर्दर ऑन, तो जैसे मैं कंक्लूड करूं तो 80% करंट अफेयर्स जो आपके पेपर्स में आया है फेज 1 में, दैट इज बेसिकली फ्रॉम पास्ट 6 मंथ्स, विच टेल्स अस के टाइमलाइन क्या होनी चाहिए, 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स ही आपको प्रोमिनेंटली पढ़ने हैं. तो जो भी एक्सपेक्टेशंस चल रही हैं इस टाइम मार्केट्स में, कोई बोल रहा है अक्टूबर में पेपर होगा या सितंबर में पेपर होगा, मैं बोलता हूं पेपर जब मर्जी हो, आपको रिवर्स ऑर्डर में पढ़ना अभी से स्टार्ट करना है. तो ये 6 मंथ्स आपको रिवर्स ऑर्डर में फॉलो करने हैं कि लेट से अगर पेपर आपका सितंबर में हो जाता है, तो अगर आप अगस्त का मंथ आप पढ़ रहे हो या जुलाई का मंथ पढ़ रहे हो, तो दैट विल बी एप्लीकेबल इफ द पेपर इन अक्टूबर ऑल्सो, इन सितंबर ऑल्सो, दैट विल बी एप्लीकेबल देयर ऑल्सो. तो जब भी आप करंट अफेयर्स को पढ़ते हो, स्टार्ट रीडिंग देम इन रिवर्स ऑर्डर, दैट्स द बेस्ट स्ट्रेटजी यू मस्ट फॉलो देयर. ओके जी, दैट्स द पॉइंट नंबर 1 हियर. Second, if I talk about के prominency last 6 months की, how you can see here total 57 questions were there from current affairs, and out of this 57, 46 questions is from past 6 months. Okay, so which tells us one thing कि अगर आप यहाँ पे, मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पे 2 रिपोर्ट से क्वेश्चन ऐसे आ रहे, 2-3 रिपोर्ट से क्वेश्चन थे जो कि थोड़े से 7 to 8 मंथ्स में थे, प्रोमिनेंट रिपोर्ट थी आइजर की, तो सिर्फ उनको छोड़ दो, सारा करंट अफेयर्स आपका लास्ट 6 मंथ से ही आया है. Which means here the prime focus should be on past 6 months on priority. Okay, that should be the thing, because यहां पे आपको होगा क्या, आपको रिटर्न ऑफ आउटपुट मैक्सिमम यहां पे मिलेगा. ठीक है जी, अब आते हैं आगे. When I talk about from the thing here, जो मैंने आपको बोला, देखो पास्ट 6 मंथ्स, तो देखो आप वही चीज मैं रिपीट कर रहा हूं, जून में क्वेश्चन आए, जुलाई में क्वेश्चन आए, ठीक है जी, अप्रैल, अगस्त, तो पेपर सितंबर में तो देखो यही दिख रहा है, जून, जुलाई, अगस्त, तो यहीं से क्वेश्चन मैक्सिमम आपको पूछे जा रहे हैं. और इन 6 मंथ्स में भी अगर आपके पास टाइम बिल्कुल ही कम है, तो आई विल से गाइस एटलीस्ट 3 मंथ्स तो पढ़ ही लो, 3 मंथ्स तो बिल्कुल पढ़ के जाओ. ठीक है जी, 6 मंथ्स फ्रॉम करंट अफेयर्स, द टाइमलाइन इज 1 वीक बिफोर द एग्जामिनेशन. दैट्स द पॉइंट हियर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड प्रोमिनेंट थिंग, फेज 2 की तैयारी कैसे करनी है. फेज 2 के लिए मैं बोलता हूं लास्ट 8 मंथ्स. अब देखो वो जो 6 मंथ्स आपने इंक्लूड किए फेज 1 के, इट विल बी गिविंग यू टाइम ऑफ 1 मंथ तो देगा, अगर NABARD आपको दे रहा है जनरल सेंस में, तो 6 + 1 7 मंथ विल बी देयर. ठीक है, तो ऑलमोस्ट जो चीज आपने पढ़ी है फेज 1 के लिए, तभी बोल रहा हूं इंटीग्रेटेडली कितना जरूरी है. देखो मैंने बोला ना इंटीग्रेटेड करना है, 6 + 1, विच मीन्स व्हेन यू आर इंटीग्रेटेडली प्रिपेयरिंग, आपके ऑटोमेटिकली यहां पे 7 मंथ्स हो जाएंगे आराम से कंप्लीट. तो दिस इज द थिंग. बट ये 8 मंथ्स भी मैं बोल रहा हूं पढ़ने हैं, क्यों पढ़ने हैं, लेट्स लुक एट द क्वेश्चन हियर. तो देखो आपको 19 क्वेश्चंस आए और 18 क्वेश्चंस आए डायरेक्टली फ्रॉम पास्ट 6 to 8 मंथ्स, व्हिच मींस हियर तो यू आर गेटिंग ऑलमोस्ट 90% ऑफ द रिटर्न ऑफ आउटपुट. So I am again repeating, guys, I am not saying that they will not be asking questions from this timeline of beyond 6 months or beyond 8 months, but the point is current affair is such a difficult, such a lot of data heavy things you are reading. तो इतना डाटा याद हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा, तो फिर उसको इतना पीछे क्यों याद करना है. वहां पे एफर्ट लगाओ जहां पे रिटर्न ऑफ आउटपुट ज्यादा होगा और आप एग्जाम में रिप्रोड्यूस करोगे और उसको बेटर करके आओगे. दैट शुड बी द थिंग हियर. ठीक है जी, चलिए, तो यहां पे सेम चीज है 22 मार्च, तो फेज 2 के लिए वही सेम चीज जो मैंने आपको बताई है, 1 वीक बिफोर द एग्जामिनेशन, दिस इज द टाइमलाइन यू मस्ट नोट डाउन फॉर यू. ठीक है जी, अब इस थोड़ा सा सेशन को कंक्लूड करते हैं कि मैंने आपको बता दिया कि कौन से सोर्सेज हैं, क्या टॉपिक्स हैं, बट अब फिर भी एंड में आता है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं इफ यू आर प्रिपेयरिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो दैट यू मस्ट नॉट मिस फॉर द एग्जामिनेशन. क्या नहीं मिस करना जी आपको, ये 3 प्रोमिनेंट चीजें हैं. गवर्नमेंट स्कीम्स आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी है. ठीक है जी, बिल्कुल नहीं छोड़नी गवर्नमेंट स्कीम्स, सिलेबस में डिफाइंड है एंड द टाइमलाइन आई हैव टोल्ड विद यू. ठीक है जी, 6 मंथ्स बिफोर फेज 1 एंड 8 मंथ्स बिफोर फेज 2 द स्कीम्स शुड बी कवर्ड. सेम गोल्स फॉर रिपोर्ट्स. तो रिपोर्ट्स के लिए हम जनरली बोलते हैं फेज 1 फेज 2 के लिए जनरली आप टाइमलाइन रख लीजिए 6 to 8 मंथ्स. 6 मंथ रखो ही ना,
8 मंथ्स की रख लो ताकि वो फेज 2 के लिए भी प्रिपेयर हो जाए, फेज 1 के लिए भी हो जाए। फिर ESI ARD करंट अफेयर्स, ठीक है। यहां पे मैंने एक चीज लिखी, दैट इज द स्टैटिक पार्ट हियर दैट यू मस्ट कवर विद रिस्पेक्ट टू ARD, बट करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फेज 2 ओरिएंटेड बहुत पढ़ना है। पर अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर व्हाट अबाउट GA? GA नहीं पढ़ना अभी तो मैं छोड़ दूं मैं उस GA को, तो मेरे तो 20 मार्क्स का GA भी करना है, तो क्या करना है? देखो अब आपको यहां पे जनरल अवेयरनेस स्टार्ट करना है। कैसे? जनरल अवेयरनेस के लिए सिंपल फंडा है, आप ट्राई करो 5 मंथ्स तक पढ़ने के लिए, अगर नहीं होता तो यहां पे 3 मंथ्स पे आ जाओ, ठीक है जी। तो ये तो आपको जब आपका नोटिफिकेशन टाइम होगा तो इस टाइम पे अगर आप GA पढ़ रहे हो तो डिवोट अ टाइम फॉर GA, बट यहां पे जब आपकी एग्जैक्ट डेट आती है तब आप अपने आप को थोड़ा सा और पुश कीजिए, क्योंकि अगर आप ये सब कुछ पढ़ चुके हो तो फिर एक टॉपिक के लिए तो अगर आप 15 डेज भी लगा दे तो यू कैन पुश योरसेल्फ ऑन दैट थिंग, ठीक है। तो GA आई विल से लास्ट 3 मंथ्स को बहुत अच्छी तरह पढ़ना और 5 मंथ्स तक रखो, बट दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स यू कैन नॉट मिस, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम्स ऐसा नहीं है कि आपके GA में नहीं आएंगी, GA में भी एक आधा क्वेश्चन आता है, रिपोर्ट्स का भी आ जाता है, ARD स्टैटिक और करंट का भी आता है, तो GA इज अ मिक्सचर हियर, सो दैट्स द थिंग आई विल से यू कैन नॉट मिस, ठीक है जी। GA वाला पार्ट पढ़ना है, ठीक है जी, लास्ट 3 मंथ्स के लिए, बट ये 3 प्रोमिनेंट चीजें स्कीम्स, रिपोर्ट्स और ARD करंट अफेयर्स तो बिल्कुल ही मिस नहीं करने, क्योंकि आपकी फेज 1 फेज 2 प्रिपरेशन यहां पे इंपॉर्टेंट बन जाती है, ठीक है जी। देन व्हाट आर द थिंग्स यू मस्ट डू, ठीक है जी। आपको PYQs एनालाइज करने हैं, तो दैट्स द पर्पस ऑफ दिस गाइड बुक गाइस, आपको PYQs एनालाइज करने हैं, आप अपने नोट्स बनाओ। अब मैं आपको एक चीज बोल रहा हूं कि अपने नोट्स बनाओ, ठीक है जी। इफ यू आर इन अ हैबिट ऑफ मेकिंग द नोट्स दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट अगर आप कोई कंपाइलेशन भी पढ़ते हो तो उस कंपाइलेशन में भी आपको क्या करना है, हाईलाइट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, दैट इज मेकिंग ऑफ योर नोट्स विद रिस्पेक्ट टू योर अंडरस्टैंडिंग। उनको मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और एनालाइज कीजिए अपनी मिस्टेक्स को। यही चीजें आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी करनी है, और आई विल से कोई फियर ऑफ थॉट नहीं है कि कैसा पेपर आएगा, पेपर जैसा भी हो, अगर आप ये चीज प्रैक्टिस कर रहे हो यू कैन हैंडल द क्वेश्चंस, ठीक है जी। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज कौन सी चीजें अब आपको अवॉइड करनी है स्पेसिफिकली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्या क्या चीजें अवॉइड ही कर देनी कंप्लीटली। अब आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम पे माय सिंसियर एडवाइस विल बी, डू नॉट स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ओनली थिंग इज, अभी मैंने आपको बोला कि आप पढ़ो, प्रोमिनेंसी क्या है कि देखिए PIB में अगर सेशन चलता है तो अराउंड एंड अराउंड एवरेज ऑन एन एवरेज 70 to 80 लिंक्स आर देयर एवरेज। हिंदू में you again have around 70 to 80 or 100 links are there on a daily basis on the website of the Hindu। अब आपको 200 लिंक्स डेली देखने हैं, उसको फिल्टर करना है, उसमें से नोट्स बनाने हैं, तो आपका टाइम लगेगा, और जबकि वही टाइम अब आपको यूटिलाइज करना है द थिंग्स विच आई हैव डिस्कस्ड जस्ट इन द वीडियो, तो वहां पे यूटिलाइजेशन करनी है। तो रीडिंग न्यूज़पेपर्स आई विल से अवॉइड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अगर बहुत ही मन में आ रहा है तो आई विल से यार कुछ एडिटोरियल्स पढ़ लेना जो कि आपके सिलेबस से रिलेटेड हैं, वो रीड कर सकते हो। बजट सर्वे तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ना यार, डॉक्यूमेंट पढ़ना ही नहीं, कतई नहीं पढ़ना, ठीक है, क्योंकि इतने लंबे डॉक्यूमेंट्स हैं, नहीं पढ़ने, छोड़ दो। और आई विल से डू नॉट रीड UPSC मैगजीन्स नाउ, द रीजन बीइंग दैट इज इफ यू आर अ UPSC एस्पिरेंट आल्सो गाइस, द ओनली थिंग इज द रेगुलेटरी बॉडी एग्जामिनेशंस दे काइंड ऑफ आस्क यू सम फैक्चुअल क्वेश्चंस, ठीक है, और UPSC में इतनी फैक्चुअलनेस कवर नहीं होती, सो दैट्स द रीजन आई ऑलवेज से डू नॉट रीड UPSC मैगजीन्स। They are good for the other examination, but for this examination they're not that much suitable, so read only those magazines which are related to your examination। तो इसीलिए जो मैंने पहली एक्सरसाइज बोली है, एनालाइजेशन ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए अब हम आपकी हेल्प कैसे कर रहे हैं, सो गाइस वी आर प्रोवाइडिंग यू दिस बेसिक थिंग्स, बेसिक सोर्सेज हियर दैट यू कैन सी बिहाइंड मी। सो वी हैव अ डेडिकेटेड मैगजीन्स बाय, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव करंट टाइम मैगजीन जहां पे GA ESI फाइनेंस होता है। तो फाइनेंस में भी अगर मैं आपको बोलूं जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं RBI सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया के लिए, तो यहाँ पे प्रॉपर डिफाइंड टॉपिक है, तो सिर्फ आपको वही टॉपिक पढ़ना है, सारा नहीं पढ़ना, तो ये आपकी हेल्प हो जाएगी। यहाँ पे स्कीम्स टैब आपकी सारी स्पेसिफिक स्कीम्स, चाहे स्कीम का नाम आया है, स्कीम की डिटेल आई है, एवरीथिंग इज कवर्ड हियर। रिपोर्ट्स आर कवर्ड अंडर योर रिपोर्ट्स टैब डॉक्यूमेंट, ठीक है जी। प्रॉपर कैटेगराइजेशन है, फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स जो कि नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने निकाली हैं, आपकी सिलेबस से रिलेट करनी है, तो दे आर बीइंग कवर्ड अंडर दिस डॉक्यूमेंट इन द फर्स्ट सेक्शन। देन गाइस व्हाट अबाउट ARD करंट अफेयर्स, सर 7 नंबर तो वो भी इंपॉर्टेंट है,
हमें उन 7 नंबर की भी बहुत चिंता है, क्योंकि आपका एक एक नंबर काउंट करता है। वी हैव अ सेपरेट मैगजीन फॉर एग्रीकल्चर, दैट इज द करंट टैप एग्रीकल्चर मैगजीन. So this is how guys we are helping you. So this brings me to the end of this video guys. ठीक है जी. Before that I just wanted to, ठीक है, अब एंड में मैंने आपको सब कुछ बताया, बट नाउ वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैंने आपको करंट अफेयर्स बताया, बट इसके अलावा अगर आपको प्रिपेयर करना तो आप कैसे कर सकते हो. वी आर प्रोवाइडिंग यू 2 काइंड ऑफ पैकेजेस हियर. अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हो तो आपको हर चीज फेज 1, फेज 2, इंटरव्यू, तीनों चीजें आपको यहां पे पता चलेंगी. पूरा डिटेल थिंग विल बी गिवन हियर. इफ लेट्स से आपने अपना जो नॉन मेरिट सेक्शन था उसको आपने नहीं पढ़ा, उसके अलावा आपको चीजें करनी है, तो यू कैन गो टू द सिल्वर पैक, बिकॉज यू विल बी गेटिंग ESI, ARD, GA, फेज 2 पूरा कंप्लीट इंटरव्यू गाइडेंस. यू विल बी गेटिंग द होल गाइडेंस हियर. एंड आई एम नॉट जस्ट सेइंग हियर कि आप कुछ भी लेके देख लो. हम आपको प्रॉपर एक सैंपल मटेरियल्स वी आर प्रोवाइडिंग यू. The link for that is given in the description below. You look at the sample papers and then make your decision. It's not just about me who is compelling you to make a decision. It's you who should make a decision here. Okay? And then guys, फिर भी आपको कोई भी डाउट है with respect to NABARD examination, ठीक है जी, there is a link that is given below in the description of this video, where the workshop that is being conducted by Diksha ma'am with respect to the NABARD aspirants, so you can attend that specific workshop also for your examination. ठीक है जी. So guys, this was all about this session, and I hope if you have enjoyed the session to subscribe to our YouTube channel. Then now if you have any kind of doubt still in the mind of your, do not worry. ठीक है जी, मैंने आपको तीनों वेज बता दिए हैं. You can go to the workshop, you can take the sample material with you, and the other prominent thing, आपको गाइड बुक है. और तीसरा चीज, अगर आपको फिर भी करंट अफेयर्स रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, डू नॉट हेजिटेट, जस्ट ड्रॉप मी एन ईमेल एट hello@arutap.co.in. okay, and you can have a call with me on the number that is 8146207241. ठीक है जी. So we are here for every purpose. We want to help you in every possible way. And with that, I'm signing off this session. So wishing you all the best for the examination. Keep working hard and keep preparing hard. Bye bye.